Hi, welcome to Teaching Learning with Shweta. I'm Dr. Shweta, and today I'm going to start with the topic sampling techniques. Sampling techniques and knowledge about it is very important because without knowledge about sampling, you cannot actually begin with data collection. So, you should know what are the methods, what are the techniques to form or develop your sample. So for all those research scholars who just started with their PhDs or dissertations or data collection, this lecture is going to be very useful to you. And I have undertaken very basic and simple concepts under this in this lecture. So let's begin with understanding what sampling means. Sampling is something that we as normal people, without even the knowledge of research methodology, keep doing in our daily lives, in our daily activities. For example, you go to buy anything, you always want it to be of good quality. So, for example, you're going to buy 5 kgs rice, and that rice from a very, very big container full of rice. So you want to ensure that the quality of the rice that comes into your packet or comes to your share is of good quality. So how do you ensure that? So what you would want to do is you want to mix the container, and then often you take out a handful of rice and seeds and check its quality. So there are two things that we do. We mix the rice properly so that if there are bad quality rice just across the main container and there's good quality rice only decorated on the top to fool you, so when you mix the entire rice and then take out a small portion from it, then the real quality of rice in the entire container can be assessed by you. So that is what is sampling. तो इसको हिंदी में बता देती हूँ. अगर आप चावल खरीदने गए हो, एक बड़े से बोरे में से आपको चावल निकालना है, आपको 5 केजी चावल चाहिए, लेकिन आपको पहले ये देखना है कि उस बोरी में जितना चावल रखा हुआ है वो कहीं खराब क्वालिटी का तो नहीं है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं दुकानदार ऊपर ऊपर अच्छा चावल रख देंगे, क्योंकि आप तो ऊपर से ही सिलेक्ट करके देखोगे. तो आप उस कंटेनर को थोड़ा सा हिला के अच्छे से मिक्स करके फिर उसमें से जब एक मुट्ठी चावल निकालते हो तो आपको पता लग जाता है कि चावल की क्वालिटी उस कंटेनर में कैसी है. अगर आप सिर्फ ऊपर से चावल निकालोगे जो कि अच्छा सजाया हुआ है तो आपको लगेगा कि चावल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और आप से बाद में जब चावल वो दिया जाएगा तो आप खराब क्वालिटी का चावल ले आओगे घर में. तो इसीलिए वो मिक्स किया जाता है हमेशा, और उसमें से एक मुट्ठी निकाल के हम देखते हैं कि वो चावल की क्वालिटी जो पूरे कंटेनर में है वो कैसी है. तो ये जो मुट्ठी निकाली हमने मिक्स करने के बाद, मिक्स हमने क्यों किया? ताकि हमें पूरे चावल जो पूरे कंटेनर में चावल है उसके एक आध दाने सब मिक्स होके हमारे हाथ में आए, तो हमें उसकी रियल क्वालिटी के बारे में पता चले. क्योंकि कहीं छिपा के अगर एक कॉर्नर में अच्छे चावल रख दिया और आपने उसी कॉर्नर में से मुट्ठी निकाल दी तो आपको लगेगा चावल बहुत अच्छे हैं, जबकि नहीं है उसमें. तो इसीलिए सैम्पलिंग हम करते हैं ऐसे केसेस में. हम even without the knowledge of research methodology, we are doing this kind of sampling in our daily life. So we are taking out a portion of rice, we are first mixing the entire container so that all the rice grains, they get mixed together, the bad ones, the good ones, if there are any bad ones in it. And then when we take out one small portion of rice from it, a handful of rice from it, we get to know the quality of rice in that entire container. We get an idea of how rice in that container, the quality of the rice in that container. So this process of taking out a small portion that represents the entire amount of rice or the quality of rice in the entire container and checking, that is sampling. तो वो एक उसको हम sampling कहते हैं. हम sampling ही तो कर रहे हैं. So ऐसे ही जब हम रिसर्च करते हैं और हमें एक बड़े से ग्रुप पे रिसर्च करनी है, सपोज हमें टीचर्स के ऊपर रिसर्च करनी है, तो हमने तो पहले, अब हम सारी दुनिया के टीचर्स पे तो रिसर्च कर नहीं सकते. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं जिनके पास इतने ज्यादा पैसे हैं, रिसोर्सेज हैं. एज एन इंडिविजुअल, एज ए रिसर्च स्कॉलर, हम पूरी दुनिया के टीचर्स के ऊपर रिसर्च करना हमारे लिए मुश्किल होता है. तो हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा यूनिट लेते हैं कि अगर हम दिल्ली के टीचर्स को भी रिसर्च करें तो वो भी करोड़ों में होंगे, तो इसीलिए लाखों में तो होंगे ही. तो इसीलिए हमें थोड़ा सा छोटा ग्रुप लेना पड़ेगा, बिकॉज वी एज रिसर्चर्स आर वी हैव लिमिटेड कैपेसिटी, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. तो हम पूरी दुनिया के ऊपर सारे दिल्ली के टीचर्स के ऊपर तो रिसर्च नहीं कर सकते, बट हमें एक छोटा ग्रुप तो बनाना ही पड़ेगा
लेकिन उस ग्रुप में हम अगर सिर्फ अपने हिसाब से टीचर्स चुन लें और अपनी रिसर्च दिखा दें कि ये टीचर्स तो ऐसे हैं, ये टीचर्स तो वैसे हैं, तो वो रिसर्च भी गलत हो जाती है। तो हमें ऐसा ग्रुप चूज करना पड़ेगा जो एक्चुअली दिल्ली के सारे टीचर्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। उस ग्रुप में सब तरह के टीचर्स आ गए, चाहे वो फीमेल्स हो, चाहे वो मतलब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो हम ऐसा ग्रुप जब बनाते हैं जो कि एक पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट अच्छे से करता है, तो उसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। So why do we do sampling? Because we want to research on a certain group, and that group could be very, very large. And researching on that group, the entire population gets beyond our capacity. So it's not possible for us to research on all the members of the population. So we form a small group. But then forming of the small group is not very easy and has to be done very carefully, so that all the members of that small group, they look like the entire population. They have the same, they include the characteristics of all the members of the population. It has to be done very carefully. तो वो जो small handful rice था, उसमें वो सारे टाइप के दाने अगर आ जाएं, अगर उसमें सारे कंकड़ पत्थर आ रहे हैं, तो इसका मतलब उस कंटेनर में बहुत सारे कंकड़ पत्थर हैं और वो कंटेनर अच्छे से मिक्स्ड नहीं था, तो हो सकता है कि हमें गलत पिक्चर मिल जाए। तो सैम्पलिंग गलत भी हो जाती है अगर हम अपने हिसाब से जो मर्जी करें और हम कैसा भी ग्रुप बना लें। सो रिसर्चिंग ऑन एन एंटायर पॉपुलेशन डिमांड्स फॉर्मिंग अ स्मॉल ग्रुप जिस पे हम रिसर्च कर सकते हैं, जो हमारी कैपेबिलिटी के अंडर है। बट वो ग्रुप भी ऐसा होना चाहिए जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, कि वो हम उसमें कोई बायस ना हो या गलती ना हो। देखिए अभी जैसे एक बड़ा पॉपुलेशन, देयर आर टू बॉक्सेस, द राइट वन इज, सपोज लेट अस अज्यूम इट्स द पॉपुलेशन, सो इट हैज टू अल्फाबेट्स ऑफ बी इन द डार्क ग्रीन एंड लाइट ग्रीन, टू अल्फाबेट्स small a, c. Now we are trying to form a small group. It's not possible, suppose it's not possible to research on all these alphabets that is in the population. So we form a small group. अब इस ग्रुप में खाली हम B ले लें या C ले लें तो ये तो रिप्रेजेंट नहीं करेगा ना पूरे पॉपुलेशन को। तो हमने एक A भी ले लिया, एक लाइट ग्रीन B ले लिया, एक डार्क C भी ले लिया, एक डार्क B भी ले लिया। तो हमारा जो छोटा सैंपल है, now this sample which has all the alphabets, now it becomes a representative of the entire population. So instead of researching on that bigger rectangle, if we research on the members of the small rectangle, there are chances that we are able to cover, we are able to research or know about the entire population properly. So that is that is what we mean by true representation. तो जो ग्रुप हम बना रहे हैं, जिस ग्रुप को हमने पूरे पॉपुलेशन में से चूज किया, अब हमें सारे टीचर्स, दिल्ली के सारे टीचर्स के ऊपर रिसर्च करनी है, बट वो तो पॉसिबल नहीं है, तो हम एक 30, 40 या 100 का ग्रुप बनाएंगे। वो ग्रुप भी ऐसा होना चाहिए कि जितने टीचर्स के टाइप्स हैं उन सबको वो कवर करे, कोई मिस आउट ना हो, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो बहुत केयरफुली करना पड़ता है हमें। एंड वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट एज रिसर्चर्स देयर आर ऑलवेज लिमिटेशंस। ओके, लिमिटेशंस फाइनेंशियली, लिमिटेशंस ऑफ टाइम, हमारे पास टाइम भी लिमिटेड होता है। करने को तो हम कर सकते हैं, सेंसस जो होता है, सेंसस में सारे एक एक इंडिविजुअल कंट्री का कवर होता है, बट सेंसस करने के लिए एज अ रिसर्च स्कॉलर, एज अ पीएचडी स्कॉलर, हमारे पास ना इतने पैसे हैं ना इतना टाइम है। गवर्नमेंट के पास तो है, तो इसीलिए हम सेंसस नहीं कर सकते। वी कांट कवर ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, सो वी हैव टू फॉर्म अ ग्रुप। एंड कई बार बहुत अच्छा ग्रुप मजबूरी में भी नहीं बन पाता है because of more restraints, but that we'll talk about in our future slides. So for now, this understanding that a sample is a group which represents the entire population on which we are aiming to research on, जिस पे हम रिसर्च करने की सोच रहे हैं, उसका एक छोटा सा representative group है सैंपल। सैम्पलिंग टेक्निक्स 2 टाइप्स की हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो इसमें मैं बता दूं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है। उस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जैसे कि हमने चावल के बोरे को अच्छे से मिक्स कर दिया ताकि अच्छे बुरे सब टाइप के चावल उसमें प्रॉपर्ली मिक्स हो गए। अब हमने अंदाज से कहीं से भी बिना हमने अंदाज से उसको चूज करके निकाला, मतलब रैंडमली निकाला हमने उसमें से एक कंटेनर में से एक हैंडफुल ऑफ चावल रैंडमली निकाला। तो मतलब हमें नहीं पता था, हमने उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हमें नहीं पता कि गंदा वाला चावल कहाँ है, अच्छा वाला चावल कहाँ है, सब आपस में मिक्स हो गया।
लेकिन अगर शॉपकीपर हमें बेवकूफ़ बनाना चाहे तो वो क्या करेगा कि वो उसको रैंडम नहीं रखेगा, उसको मिक्स नहीं करेगा, वो अच्छे अच्छे ऊपर रखेगा और अच्छे में से ही निकाल के आपको दिखाएगा कि देखिए ये चावल तो बहुत अच्छे हैं, और फिर आप जब जाओगे तो वो उसी में से गंदे गंदे सब मिक्स करके आपको 5 केजी पकड़ा देगा। तो दैट वाज नॉट रैंडम सैम्पलिंग, वो बायस था उसमें। तो रैंडम सैम्पलिंग, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज बेसिकली that kind of sampling in which the effort to create a sample which is a true representative of population is the maximum। तो जिस तरह की सैम्पलिंग में सबसे ज्यादा कोशिश की जाती है कि वो छोटा सा ग्रुप पॉपुलेशन से सबसे ज्यादा मिलता हो, दैट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और इसमें भी बहुत तरह के अच्छे, इसमें भी हायरार्की है, सबसे अच्छा वाला प्रोबेबिलिटी, उससे कम थोड़ा सा अच्छा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग है, इट इज दैट काइंड ऑफ सैम्पलिंग इन विच द एफर्ट to create a sample which is a true representative of population is the maximum, is the most। तो दैट काइंड ऑफ सैम्पलिंग इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें सारे मेंबर्स का इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है, कोई भी उसमें सिलेक्ट हो सकता है, उसमें हमारी कोई बायस नहीं है कि हम खाली अच्छे अच्छे ही रखेंगे सैंपल में, या हम अपने दोस्तों को ही रखेंगे सैंपल में, जो जिन टीचर से मेरी दोस्ती है मैं उन्हीं को रखूंगी, ऐसा नहीं है, किसी को भी हम रख सकते हैं। So there are several kinds of probability sampling types. Let's go through each one by one. Simple random sampling is the best kind of sampling. इसमें क्या है, we don't know who will be selected, कौन सा चावल आएगा हमारी मुट्ठी में हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम सारे population में से randomly किसी को भी निकाल लेते हैं। We can do that, so there is no risk of any bias in this sampling। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं कोई भी उसमें से हमारे सैंपल में अपने आप रैंडमली सिलेक्ट हो सकता है। Now this is not only economical, and it saves money, but also it ensures that the sampling, the person who's researching does not have any bias while making that sample। तो जो हम सैंपल बना रहे हैं पूरे पॉपुलेशन में से, हम क्या करेंगे कि हम या तो लॉटरी से निकाल सकते हैं, that we can list out the population and then just write down their names on chits of paper and then randomly select any chit। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, लॉटरी मेथड से निकाल सकते हैं। So this kind of method of selecting sample from population is simple random sampling and it is the best kind of sampling। तो ये अगर हम कर सकते हैं तो सबसे अच्छा रहता है। Systematic sampling is also unbiased kind of sampling, and in this what we can do, we can list out all the members of the population and then we can just set a rule कि every third person or every fourth person will be selected। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमने शुरुआत सेकंड से कर ली, फिर हम every fourth individual को select कर रहे हैं। So that also is also unbiased because यहाँ पे भी हमने decide नहीं किया कि हम अपने दोस्तों को choose करेंगे और we will be choosing the ones who are going to answer in our favor for our research। बिकॉज अगर हम एक रिसर्च कर रहे हैं किसी टॉपिक पर और हमें सवाल पूछने हैं लोगों से, वी आर रिसर्चिंग ऑन अ टॉपिक एंड वी वांट टू आस्क certain questions to people, those people should be a part of our group, those people will be the sample or the population। Now the people we will ask questions from, if they are all selected with bias, that is if they are all our friends or neighbors or relatives, they are going to answer accordingly। तो मैं जैसा रिसर्च रिजल्ट चाह रही हूँ वैसा ही रिजल्ट आ जाए, तो इसलिए हमें सैम्पलिंग ऐसी करनी है, हमें ऐसे लोगों से सवाल पूछना है, we are going to ask questions to only those people who are not our friends or relatives or who will answer what we want them to answer। So we'll randomly select them, so we'll write down their names on the chits of paper or a list and then every third individual, irrespective of who he or she is, मुझे नहीं पता हर थर्ड और फोर्थ इंडिविजुअल कौन होगा। जैसे चावल की बोरी को आपने मिक्स कर दिया था, वैसे ही पॉपुलेशन को आप रैंडमली लिखोगे और उसमें से हर तीसरे हर चौथे, ये रूल बन गया, चाहे वो तीसरा मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो बट वो सैंपल में आएगा। तो इस तरह की जो रैंडम सैम्पलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, उसको हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहते हैं, जिसमें वी सेट अ रूल दैट एवरी थर्ड, एवरी फोर्थ और एवरी nth person is going to be a part of our sampling। Then stratified samples. This is something that I had also done in my PhD thesis। For example, there is an entire state that I wish to cover,
suppose all the teachers in the state. Now that's not possible for me, so I will divide. I know that a certain state, let us assume that the state has 3 districts, D1, D2, D3. So I randomly select one district out of it, D1. अब ये कौन सा होगा, मैंने D1, D2, D3 लिख दिया और आंख बंद करके किसी पे भी हाथ लगा लिया एंड सपोज D2 आ गया या D3 आ गया, तो अब मैंने उसी डिस्ट्रिक्ट को लिया. अब उस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे जोन्स हैं. अब मैंने फिर से जोन को रैंडमली किसी भी जोन को चूज कर लिया विदाउट एनी बायस. अब उसमें 15-16 जोन्स हैं, तो सपोज मैंने 5 जोन्स ले लिए, उसमें से एनी सिस्टमैटिक लगा दी या सिंपल रैंडम मैंने चिट्स पे लिख दिया. आई रोट द नेम्स ऑफ दोस जोन्स इन चिट्स एंड फोल्डेड देम एंड रैंडमली सिलेक्टेड एनी 5 जोन्स. अब उस जोन में से अगर उस जोन में 4-5 स्कूल्स हैं, तो अगेन रैंडमली आई सिलेक्टेड 5 और इन दिस केस 2 schools and a total of 10 teachers from each school. तो इस तरह से if we are dividing the population into further groups at every stage, we are doing simple random sampling. So in that case also there is not much bias here in the final sample that we get. This is done when the population is very large and it is possible to divide the population. For example, here if I was undertaking, here in my PhD thesis, I had undertaken schools, the government schools of Delhi. Now Delhi is a very big state. It's a very big place. So it was not possible for me to cover all the teachers, all the government school teachers. So I had to randomly select 2 or 3 districts. I had selected 5 and then out of those 5 districts I had to randomly select zones. अब यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से नहीं जोन कर रही थी, मैंने जोन सेलेक्ट कर रही थी. I had actually randomly selected those 2-3 zones out of 15-16 zones. From those 2-3 zones, I had selected randomly 5 schools, again through random sampling, and from those 5 schools, I selected randomly from the list of all teachers. So here at every stage, randomly selection was done, but division was done. So when random sampling is being done, but division of the entire population is being done, so that जितनी भी groups हैं, जितनी भी groups में population divided है, at least एक आध तो हर एक group से आ जाए. So stratified sampling is also a probability sampling and is also not a very bad method of probability sampling. Cluster sampling, कई बार क्या होता है, at times it's very difficult to divide the population or economically, or we are time bound and we have a lot of limitations. And the population is already divided into clusters. Already population में groups बने हुए हैं कि 4 DPS के schools यहाँ हैं, 5 श्री राम के schools यहाँ हैं, 5 दयालबा के schools यहाँ हैं. तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि we randomly select any cluster out of these many clusters. कि एक हमने एक श्री राम वाले ग्रुप को ले लिया, एक दूसरी ब्रांच को ले लिया. इस तरह से हमने randomly ग्रुप्स जो ऑलरेडी बने हुए हैं, नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स बने हैं, पूरे ग्रुप को हमने अपने सैंपल में ले लिया. Now again, it is at the lower level in the hierarchy of probability sampling. इसमें थोड़ा सा bias आ जाता है, but this is done when we are compelled. We do not have an option. हमें जब इतने schools available ही नहीं है या permission नहीं मिली है, ऐसे cases में we take the whole group as, but that selection of that entire group is done randomly. अगर 5-6 groups बने हुए हैं तो उसमें से कौन सा group हम select करेंगे, कौन से groups हम select करेंगे, which groups will be selected out of the many naturally occurring groups, that selection has to be done randomly. So that is the selection of an entire group which is already there is cluster sampling. Now we come to non-probability sampling. Now probability sampling में randomness बहुत ज़्यादा होती है कि पूरी बोरी और जो चावल की बोरी उसको हम पूरा अच्छे से मिलाएं, मिक्स करें randomly ताकि सब कुछ मिल जाए उसमें, और उसकी जब हम उसका एक पार्ट निकालें तो वो एक्चुअल राइस के बोरे जैसा हो, तो वो तो probability sampling हो गई. लेकिन कई बार probability sampling is not possible. So we have to still do sampling, और उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि हमारा bias ना हो, लेकिन probability sampling possible नहीं हो पाती है. So that kind of sampling in which the sample may not be truly exactly representing the population, that kind of sampling is non-probability sampling. So it also has several categories. I will be covering each one by one.
नाउ कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ये तो पूरी तरह से ये इट्स नॉट अ वेरी हाईली रिकमेंडेड काइंड ऑफ अ सैम्पलिंग, बिकॉज इसमें रैंडमनेस बहुत कम है, इसमें बायस आने का चांस सबसे ज्यादा है. इट इज द मोस्ट रिस्की. इट इज नॉट अ वेरी वेरी द सैम्पल चोजन थ्रू कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज नॉट अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन. बहुत ही मजबूरी में इसको किया जाता है, ठीक है, कि जो हमें मिले. अब सपोज आई एम ट्राइंग टू रिसर्च ऑन some differently abled kids. Now differently abled kids are not there in any school, but only in one school or in these three schools, so I have to and also it's not possible for me to travel the whole country, so for my convenience I go and take that school and make that my sample. So that kind of children from that school. So that kind of sampling which is done for convenience, or when there are limitations with time and with money, and that kind of sampling is convenience sampling. It is not a representative of the population. It is very easy to do, but then not recommended. पर्पसिव थोड़ी कन्वीनियंस सैम्पलिंग से मिलती है, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. पर्पसिव में वी हैव टू एक्चुअली वी हैव अ पर्पस. फॉर एग्जाम्पल, एज आई सेड, अगर मुझे डिफरेंटली एबल्ड बच्चों पे रिसर्च करनी है और वो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे सिर्फ एक ही स्कूल में हैं, तो मेरा पर्पस सॉल्व वहीं होगा जब मैं उस स्कूल में जाऊंगी. या फिर अगर मुझे किसी पर्टिकुलर बुक जो किसी पर्टिकुलर टीचिंग मेथड जो कहीं इंट्रोड्यूस हुआ है उस पर मुझे करनी है, और वो वहीं पर ही उसी स्कूल में ही वो मेथड एम्प्लॉय हो रहा है, तो मुझे उसी स्कूल में जाना पड़ेगा. सो माई पर्पस विल बी सॉल्व्ड ओनली इफ आई सिलेक्ट अ सर्टेन काइंड ऑफ अ सैम्पल. That kind of sampling is purposive or judgment sampling, when we already know about the characteristics that we are looking for our research, and that is there with the particular group. उसी ग्रुप के पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम रिसर्चिंग ऑन अ सर्टेन रिलीजियस ग्रुप, अब वो रिलीजियस ग्रुप एक ही जगह पर है, तो मुझे वहीं जाना पड़ेगा. तो दैट इज सिमिलर टू कन्वीनियंस सैम्पलिंग. बट कन्वीनियंस सैम्पलिंग कई बार कैजुअली होती है. अगर हमारे पास हम कहीं भी चले जाएं, जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे पता करना है कि कौन सा जो प्रोटीन पाउडर है वो अच्छा है, तो मैं जितने भी लोग हैं जो आ जा रहे हैं सबसे पूछ रही हूँ. दैट्स अ काइंड ऑफ अ कन्वीनियंस सैम्पलिंग. लेकिन मुझे किसी पर्टिकुलर टाइप के लोगों से ही पूछना है जो वर्कआउट करते हैं, तो मैं एक प्रॉपर जिम में जाऊंगी और वहां पे मैं सैंपल फॉर्म करूंगी. तो दैट इज पर्पसिव सैम्पलिंग. तो जब हमारा पर्पस क्लियर होता है और उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए हमें एक सैंपल को मजबूरी में सिलेक्ट करना होता है, दैट इज पर्पसिव सैम्पलिंग. बट दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी हाईली रिकमेंडेड, एंड दैट ऑल्सो कैनॉट गिव यू एनी स्टेटिस्टिकल इन्फरेंस. आपको नहीं देगा, और वो आपके जजमेंट पर होता है कि आपको पता है कि यहीं पे हमें लोग मिलेंगे जो इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं. तो दैट इज विद द पर्पस दैट यू डू. कोटा सैम्पलिंग. कोटा सैम्पलिंग और जो हमारी क्लस्टर सैम्पलिंग है उसमें students get confused. I've seen students getting confused and asking me what is the difference between the two. There is the difference that you must remember is in the proportion. जो proportion है हमारे ग्रुप का, जो सैंपल का, वो सेम होना चाहिए जो पॉपुलेशन से है. तो हम क्या, जैसे हमारा पूरा पॉपुलेशन है उसमें 60% मेन है और 40% विमेन है, तो जो हम सैंपल बनाएंगे वो हम कोई भी लेडी और जेंट्स को सिलेक्ट तो कर लेंगे, बट वो रेशियो जो होना चाहिए वो वही होना चाहिए, 60:40 का ही रेशियो होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए, और बाकी हम कुछ नहीं देख रहे हैं. सो कोटा सैम्पलिंग इज दैट काइंड ऑफ सैम्पलिंग इन विच द प्रोपोर्शन of the population, the sample is same as that in the main population. तो यहाँ पे आप देखिए, ये A बहुत सारे हैं, B बहुत सारे हैं, C हैं. तो हमने जो सैंपल सिलेक्ट किया उसमें जो हमारा प्रोपोर्शन आ रहा है A, B और C का, वो वही आ रहा है जो मेन पॉपुलेशन में है. मेन पॉपुलेशन में अगर आप देखो तो जो रेशियो आ रहा है वो 3:1:2 का ही है. अगर आप उसको कैंसिल करोगे तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A हैं इसमें, ठीक है, और B कितने हैं, 1 2 3 B हैं और 6 C हैं. तो वो रेशियो वही हो गया, 9:3:6 हो गया. तो उसको कैंसिल करेंगे तो जो सैंपल में जो रेशियो है वो भी 3:1:2 है. तो दिस काइंड ऑफ सैम्पलिंग इज कोटा सैम्पलिंग. अब ये जो है ये क्लस्टर से अलग है. क्लस्टर में क्या हो रहा है, पूरा ग्रुप सिलेक्ट हो रहा है जो नेचुरली अवेलेबल है. यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ग्रुप सिलेक्ट कर रहे हैं, हम कुछ ये नहीं देख रहे हैं कि क्या क्वालिटीज हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम सिर्फ प्रोपोर्शन को सेम रख रहे हैं, ठीक है. तो ये कोटा बन गया, एक रिजर्व हो गया कि हम
कोई भी किसी भी लेडी को रख लेंगे अपने रिसर्च में, वो हमारी दोस्त भी हो सकती है, इसीलिए ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है। लेकिन हम ये ध्यान रखेंगे कि 2 लेडीज हैं आएंगी और 4 जेंट्स आएंगे, या 4 लेडीज आएंगी और 2 जेंट्स आएंगे, ये रेशियो हम सेम रखेंगे, बट वो कोई भी हो सकता है। तो वी आर ओनली फोकसिंग ऑन दैट रिजर्व्ड नंबर्स. So that kind of reservation or that quota when we do in a sample, that is quota sampling. स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये तो बहुत ही इजी है, ये तो हम बहुत करते हैं। जैसे कि मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिया कि तुम अपने पड़ोसियों से भी पूछ लेना, ये लो क्वेश्चन है, इसको रिस्पॉन्स देने हैं, इसमें आप भी दे दो और आप और लोगों में भी बांट दो। आपको मैं लिंक दे रही हूँ, आई एम शेयरिंग अ लिंक विद यू ऑन व्हाट्सएप, यू प्लीज फीड इन योर रिस्पॉन्सेज एंड सेंड इट टू एज मेनी पीपल एज यू कैन. So in this way, when we form our sample, that when the knowledge about sample passes from one person to another, then that is snowball sampling. जब एक दूसरे के contact से हम अपना sample बढ़ा रहे हैं. Now that is also not a very highly recommended sampling technique because it is also not always a true representation of the population. But ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल खराब है. कुछ जनरल टॉपिक्स जो होते हैं जो सबको कंसर्न कर सकते हैं कि कौन सा तेल यूज करना चाहिए, कौन सा मसाला यूज करना चाहिए, कौन सा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, जो हम सबको इफेक्ट करते हैं, तो उन केसेस में, उन टॉपिक्स में हम स्नोबॉल सैम्पलिंग कर सकते हैं. अब अगर टीचिंग का मैं बात करूं तो मैं पड़ोसियों को दूंगी, तो जो टीचिंग प्रोफेशन में इन्वॉल्व नहीं है तो उससे मुझे फायदा नहीं होगा, वहां पे स्नोबॉल सैम्पलिंग करने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा. बट इफ देयर इज अ टॉपिक दैट आई एम रिसर्चिंग ऑन व्हिच कंसर्न्स व्हिच इज अफेक्टिंग एवरीबडी एल्स, कि सड़क पर जो पोल्यूशन है या जो गड्ढे हैं, इस तरह का, इस पे अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ और उसमें मैं बोल देती हूँ कि कि किसी को भी मैं दे रही हूँ, आप खुद जितने लोग मिले उनसे भी ये भरवा लीजिए, तो दैट इज एप्लीकेबल देयर. तो जितने भी मेथड्स मैंने बताए हैं, ऐसा नहीं है कि वो यूजलेस हैं, बट एक तो मजबूरी में हमें कई बार यूज करने पड़ते हैं. बेस्ट तो प्रोबेबिलिटी मेथड्स हैं, जिसमें भी बेस्ट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, लेकिन बाकी भी मेथड्स हमें कई बार एम्प्लॉय करने पड़ते हैं. तो these were the types of sampling that are most commonly used by researchers in forming a group that they want to represent the entire population. तो ये कुछ मेथड्स हैं. अगर आपको इसमें कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है या कोई फीडबैक है, तो आप जो मेरा वीडियो लेक्चर है उसके नीचे आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. सो स्टे ट्यून्ड, आई विल बी पोस्टिंग मोर लेक्चर्स टू कंप्लीट माय रिसर्च मेथोडोलॉजी सीरीज वेरी सून. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.